हमें असत से सत की ओर ले चलिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना पंत, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संभाषण में आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत गर्व की बात है कि जिस संस्कृति ने योग को दिया, आज उस योग को पूर्ण विश्व के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। सभी सरकारों ने उसको सकारा है और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी इसको एक बड़े आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया है। हमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी का संदेश प्राप्त हुआ है और वो जन साधारण के लिए संदेश है और हमारे निदेशालय के माध्यम से वो संदेश इस जन साधारण को जाएगा। डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि अब आप योगा कीजिएगा, इसी से ये चीजें तो सभी लोगों को ध्यान ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जुबेर। आप प्रिंसिपल हैं आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज तिबिया। डॉक्टर सुजाता राजन आप हमारे साथ जुड़ी हैं एज ए वाइस प्रिंसिपल। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनु कपूर एवं सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा राय भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित रूप से जुड़े हैं। और दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट के CDMO, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स और आयुष डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर राघवेंद्र राव को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और आपको अपनी प्रेजेंटेशन के रूप में एक संबोधन दें। थैंक यू डॉक्टर विशाल जी। Namaskar, Dr. Manchanja ji, and Namaskar to all the Deputy Directors of the Department of Ayush, Government of New Delhi, and my wishes to all the panelists, co-panelists, and the delegates and doctors, DDMOs and Ayush doctors of Delhi Government. So I'm here to present my views on the topic on the occasion of International Day of Yoga. This is the 7th International Day of Yoga. Unfortunately, in the last 2 years, we have been celebrating it online through webinars, through meetings, and through certain online competitions. Nevertheless, we have tried to keep the spirit of yoga among the masses, and it is because of this corona, people are now realizing the importance of yoga more so than ever before. So let us now just look into glimpse about what wellness is all about. How does yoga contribute to the aspect of wellness? So let me begin by sharing my slides. I'm sorry I'm going a little fast because I need to log out also. I have another discussion at 3 o'clock. Hope my screen is visible. So what I'm trying to talk in this next half an hour is to look at the concept of wellness and how yoga has helped in determining this particular concept, what research has gone into the concept of wellness in yoga, and what do you mean by wellness, and what are its attributes, and how one can improve wellness within us. Okay. So we always talk about illness when it comes to yoga, using yoga for diabetes, for heart disease, for rheumatoid arthritis and whatnot, right? But how do you use yoga for a healthy individual? What is it that a person who is healthy to benefit from doing yoga? Thank you so much, sir. You have made all of understand very easily in a very simple way how the different aspects of yoga and how it will stay fit with the help of yoga, how it will help in our daily life to improve our mental health as well as physical health. Thank you so much, sir. Now, I would like to introduce our next speaker, Dr. Anup Nath, sir, a person with experience of more than 26 years in teaching and treating through practice of yoga. He is a member of various national and international medical associations. He is contributing to society by his own NGO. He has published
many research publications in the field of yoga and pranayama. He has been honored with many prestigious awards for his contributions. Presently, he is District In Charge Officer in School Health. In short, he is a person with a perfect amalgamation of modern and traditional system of medical science. It's indeed our privilege to have Dr. Anup Nath sir today, and now I would like to request Dr. Anup Nath sir to share his valuable knowledge and enlighten us today on this topic. Thank you, sir. Over to Dr. Anup Nath sir. योग उच्चते दुख संयोग वियोग सुयोग संगीतम, ये सब जो बातें हमारे उपनिषद में बताई गई है, इसको हम सब जानते हैं कि योग से हमें जुड़ना है। योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना किससे है? अपने आप को सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस, जैसे एक आदमी कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो कॉन्शियस होता है तो उसे दिखाई देता है। वास्तव में क्या है? योग में हम जुड़ रहे हैं। योग में हम जुड़ रहे हैं अपने लक्ष्य से, अपने इष्ट से, अपने जो हमारा लक्ष्य है, इष्ट है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसमें उस कार्य को करने में कौशलता देने का काम योग का है। तो अब तो वैज्ञानिक बातें तो हो गई काफी, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें भी करते, जो हम उसको जीवन में किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। योग से प्रैक्टिकली हम कैसे वो करें, अभ्यास कैसे करें। तो पहले तो थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं हम इसको कि जो ये एक प्रकार के विज्ञान तो है ही, मान ही गए अब तो सब लोग कि ये विज्ञान है और इसमें कितना पोटेंशियल है। और साथ ही साथ योग की जो हम चार जो बातें कहते हैं, 4 कदम है, चार स्टेप है योग के, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग बेसिकली क्या करता है? हमारी बॉडी, हमारे माइंड और हमारे सोल, इनके साथ उसका लिंक है। बॉडी में नर्व ऑर्गन, इम्यूनो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बोन्स हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। थिंकिंग को, रीजनिंग को, चॉइसेस को। कॉन्शियस माइंड जो हमारा काम करता है, सबकॉन्शियस में हमारे बिलीफ्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, इमोशंस हैं। सोल हमारा जो है इंस्टिंक्ट है, और जो हमारी मेमोरी है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो हमारी रहती है मेमोरी, उसको भी योग इक्विलिब्रेट करता है। अब हम बात करते हैं कि अष्टांग योग क्या है। राजयोग है, इसको राजयोग भी कहते हैं। इसमें 4 स्टेप बहिरंग योग है, 4 स्टेप अंतरंग योग है। बहिरंग में क्या है कि हम अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाएं, ऐसा योग्य इंसान बनाएं जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट बने। और वो तभी बन सकता है जब हमारा नैतिक रूप से हम स्ट्रांग हो, नैतिकता हमारे अंदर हम समाये, जिसका कि आज के युग में हम देख रहे हैं बहुत अधिक अभाव है। और हम योग के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को हर बुराइयों से, आपराधिक गतिविधियों से, सब्सटेंस एब्यूज जो कर रहे हैं बच्चों, उनको हम बचा सकते हैं। तो हमारी जो इसमें मॉरल एथिकल कोड्स को फॉलो करना पड़ता है। यंग में नियम में हमें पर्सनल डिसिप्लिन करना पड़ता है। आसन में हमें शरीर का जो स्टडी पोस्चर्स है उसको ध्यान करते हुए, प्राणायाम में हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को ठीक करते हैं। बेसिकली हम इस स्टूल जो हमारे शरीर रूपी, जो हमको ईश्वर कहें या परमपिता परमेश्वर कहें या नेचर कहें, जिसने हमको शरीर दिया है, उस औजार को कैसे ठीक करा जा सकता है। लेकिन जो बात बहिरंग की तो बात हो गई। बहिरंग में तो हमने इन नियमों का पालन किया, डिसिप्लिन किया, अपने आप को, अपना पोस्चर ठीक किया, अपनी ब्रीदिंग को ठीक किया, बेसिक जो हमारी शरीर की आवश्यकता उनको ठीक करना है। अंतरंग में हमें अपने आप को, बहिरंग में तो स्वस्थ किया, लेकिन अंतरंग में हमने संयमित किया, अपने आप को संयमित किया। किस तरह से? हमारी सेंसेस के द्वारा। सेंसेस जो हमारी हैं, जिनके द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जिनसे हम परसेप्शन को ग्रहण करते हैं, और कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, उनको किस तरह हम संतुलित कर सकते हैं। धारणा क्या है कि जो भी हमने करना है उसके बारे में चिंतन करना, कॉन्सेंट्रेट करना। और ध्यान क्या? मेडिटेशन है। और समाधि क्या? सुपर कॉन्शियस स्टेट है। लेकिन ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो है, बेसिकली ये ध्यान ही है। ये ध्यान को हमारे ऋषियों ने उसको विभक्त कर दिया है, थोड़े सब डिवीजन कर दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का हमारे जीवन से संबंध है। हम किस प्रकार से हम अपनी जीवन को बहुत उन्नति रूप दे सकते हैं, अच्छा रूप दे सकते हैं, जिससे कि समाज के लिए हम एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन सके।
तो अब हम बात करते हैं जो अष्टांग योग में जो फर्स्ट स्टेप है अष्टांग योग का, यम है। यम में अहिंसा, पहली कक्षा 8वीं कक्षा तक की बात है। 8वीं कक्षा के बाद हम आगे चलेंगे। अहिंसा में क्या है कि हमें किसी प्रकार से भी हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस, हमें प्रतिकार नहीं करना। पहली चीज सत्य, हमें हमेशा झूठ से बचना है, कोई भी चीजों को छुपाना नहीं है, अपने अंदर संयमित रहते हुए अपना आचरण सत्यता का करना है। जो भी हमें कमियां हैं उनको स्वीकारना है, खुद को भी स्वीकारना है और दूसरे को भी बताना है। अस्तः एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी चीज को कि हमारे पास नहीं है तो दूसरे से छीन ली जाए। तो ये जो हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि हम डिसिप्लिन नहीं है। और योग हमें अनुशासित करता है, क्योंकि योग का पहला ही जो हमारे ऋषि पतंजलि जी ने कहा, योगा अथ योगा अनुशासन, योग अनुशासन ही तो है। यदि हम अनुशासित जीव रहेंगे तो हमारे जो समाज में आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे राजनीतिक हैं चाहे सामाजिक हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम प्रैक्टिकली योग को जीवन में नहीं जोड़ पा रहे हैं, चाहे उसके कुछ भी कारण रहे हों। हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेन इन रिलेशनशिप, मतलब अपना जो आदमी को हमारे यहाँ कहते हैं कि संतान उत्पत्ति हेतु काम बताया गया, लेकिन आज के युग में आदमी की जो एब्स्टिनेंसी है, उसकी जो सेलिबेसी है, वो योग चित्तवृत्ति निरोध समत्व योग उच्चते दुख संयोग वियोग सुयोग संगीतम, ये सब जो बातें हमारे उपनिषद में बताई गई है, इसको हम सब जानते हैं कि योग से हमें जुड़ना है। योग का अर्थ है जुड़ना किससे है? अपने आप को सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस, जैसे एक आदमी कोई अनकॉन्शियस होता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो कॉन्शियस होता है तो उसे दिखाई देता है। वास्तव में क्या है, योग में हम जुड़ रहे हैं अपने लक्ष्य से, अपने इष्ट से, अपने जो हमारा लक्ष्य है, इष्ट है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसमें उस कार्य को करने में कौशलता देने का काम योग का है। तो अब तो वैज्ञानिक बातें तो हो गई काफी, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें भी करते, जो हम उसको जीवन में किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, योग से प्रैक्टिकली हम कैसे वो करें, अभ्यास कैसे करें। तो पहले तो थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं हम इसको। योग बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी, हमारे माइंड और हमारे सोल, इनके साथ उसका लिंक है। बॉडी में नर्व ऑर्गन, इम्यूनो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बोन्स हैं, उनको भी इफेक्ट करता है, थिंकिंग को, रीजनिंग को, चॉइसेस को। कॉन्शियस माइंड जो हमारा काम करता है, सबकॉन्शियस में हमारे बिलीव्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, इमोशंस हैं। सोल हमारा जो है इंस्टिंक्ट है, और जो हमारी मेमोरी है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो हमारी रहती है मेमोरी, उसको भी योग इक्विलिब्रेट करता है। अब हम बात करते हैं कि अष्टांग योग क्या है। राजयोग है, इसको राजयोग भी कहते हैं। इसमें 4 स्टेप बहिरंग योग है, 4 स्टेप अंतरंग योग है। बहिरंग में क्या है कि हम अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाएं, ऐसा योग्य इंसान बनाएं जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट बने। और वो तभी बन सकता है जब हमारा नैतिक रूप से हम स्ट्रांग हो, नैतिकता हमारे अंदर हम समाये, जिसका कि आज के युग में हम देख रहे हैं बहुत अधिक अभाव है। और हम योग के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को हर बुराइयों से, आपराधिक गतिविधियों से, सब्सटेंस एब्यूज जो कर रहे हैं बच्चों, उनको बचा सकते हैं। तो हमारी जो इसमें मॉरल एथिकल कोड्स को फॉलो करना पड़ता है। यंग में नियम में हमें पर्सनल डिसिप्लिन करना पड़ता है। आसन में हमें शरीर का जो स्टडी पोस्चर्स है उसको ध्यान करते हुए, प्राणायाम में हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को ठीक करते हैं। बेसिकली हम इस स्टूल जो हमारे शरीर रूपी, जो हमको ईश्वर कहें या परमपिता परमेश्वर कहें या नेचर कहें, जिसने हमको शरीर दिया है, उस औजार को कैसे ठीक करा जा सकता है। लेकिन जो बात बहिरंग की तो बात हो गई, बहिरंग में तो हमने इन नियमों का पालन किया, डिसिप्लिन किया, अपने आप को, अपना पोस्चर ठीक किया, अपनी ब्रीदिंग को ठीक किया, बेसिक जो हमारी शरीर की आवश्यकता उनको ठीक करना है। अंतरंग में हमें अपने आप को, बहिरंग में तो स्वस्थ किया, लेकिन अंतरंग में हमने संयमित किया, अपने आप को संयमित किया। किस तरह से? हमारी सेंसेस के द्वारा। सेंसेस जो हमारी हैं, जिनके द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जिनसे हम परसेप्शन को ग्रहण करते हैं, और कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, उनको किस तरह हम संतुलित कर सकते हैं। धारणा क्या है कि जो भी हमने करना है उसके बारे में चिंतन करना, कॉन्सेंट्रेट करना। और ध्यान क्या? मेडिटेशन है। और समाधि क्या? सुपर कॉन्शियस स्टेट है। लेकिन ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो है, बेसिकली ये ध्यान ही है। ये ध्यान को हमारे ऋषियों ने उसको विभक्त कर दिया है, थोड़े सब डिवीजन कर दिया है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का हमारे जीवन से संबंध है। हम किस प्रकार से हम अपनी जीवन को बहुत उन्नति रूप दे सकते हैं, अच्छा रूप दे सकते हैं, जिससे कि समाज के लिए हम एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन सके। तो अब हम बात करते हैं जो अष्टांग योग में जो फर्स्ट स्टेप है अष्टांग योग का, यम है। यम में अहिंसा, पहली कक्षा 8वीं कक्षा तक की बात है। 8वीं कक्षा के बाद हम आगे चलेंगे। अहिंसा में क्या है कि हमें किसी प्रकार से भी हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस, हमें प्रतिकार नहीं करना। पहली चीज सत्य, हमें हमेशा झूठ से बचना है, कोई भी चीजों को छुपाना नहीं है, अपने अंदर संयमित रहते हुए अपना आचरण सत्यता का करना है। जो भी हमें कमियां है उनको स्वीकारना है, खुद को भी स्वीकारना है और दूसरे को भी बताना है। अस्तेय, एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी चीज को कि हमारे पास नहीं है तो दूसरे से छीन ली जाए। तो ये जो हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि हम डिसिप्लिन नहीं है। और योग हमें अनुशासित करता है, क्योंकि योग का पहला ही जो हमारे ऋषि पतंजलि जी ने कहा, योगा अथ योगा अनुशासन, योग अनुशासन ही तो है। यदि हम अनुशासित जीव रहेंगे तो हमारे जो समाज में आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे राजनीतिक हैं चाहे सामाजिक हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम प्रैक्टिकली योग को जीवन में नहीं जोड़ पा रहे हैं, चाहे उसके कुछ भी कारण रहे हों। हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेन इन रिलेशनशिप, मतलब अपना जो आदमी को हमारे यहाँ कहते हैं कि संतान उत्पत्ति हेतु काम बताया गया, लेकिन आज के युग में आदमी की जो एब्स्टिनेंसी है, उसकी जो सेलिबेसी है वो डाउटफुल है, और आदमी जो है खान पान की वजह से भी उसकी प्रवृत्ति जो है काम वासना की तरफ ज्यादा जा रही है। तो ये हम पहले ही जो 4th क्लास में बच्चे को हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षित करके उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, एक अच्छा इंडिविजुअल बना सकते हैं। अपरिग्रह में क्या है कि वही जो चीज हमारे पास है उसको अधिक से अधिक ज्यादा मात्रा में संग्रहित ना करें, हम उससे बांटें, समाज में बांटें और बटाएं, तभी तो योग होगा जब हम जुड़ेंगे समाज से। अब बात आती है नियम की। नियम में क्या है, हमें प्योरिटी रखनी है, संतोष रखना है, हमें तपस करना है, यानी क्रियाशील रहना, तपस का मतलब क्रियाशीलता रखना है, और स्वाध्याय करना है, सेल्फ एजुकेट करना है, खुद को पढ़ना है, पढ़ाना है, अपने आप को किताबों से ही पढ़ना है, अपना आपको भी पढ़ना है, स्वाध्याय भी करना है, स्वयं का भी अध्ययन करना है। ईश्वर प्रणिधान में हमें डेडिकेटेड करना हायर पावर्स के प्रति, यानी कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखती है, अपने कर्मों को हम चेक करें, हम ये न सोचे कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे अंदर ईगो समाप्त हो जाएगी 8वीं कक्षा में जाने के बाद। अब हम बात करते हैं जो हमारी एथिकल लाइफ है, उसमें हमारा जो काम करा यम ने किया, हमारे को मॉरली स्ट्रांग कर दिया। अब प्रैक्टिस में हम कहते हैं आसन और प्राणायाम की, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी सारी की सारी जो वेस्ट जो वाइटल एनर्जी है उसको इंक्रीज कैसे करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम जो इस कार्यक्रम में ये बताएंगे कि लोगों को किस तरह से हम जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो जीवनी शक्ति हमारी क्योरिंग पावर है, मेडिसिन हमारी जो ट्रीट करती हैं, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड भी तो चाहिए। यदि हमारा शरीर में क्लीनिंग नहीं होगा तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी ढंग से। तो इस फिजियोलॉजी को ठीक करने में जो काम है, शरीर की जो क्रियाओं को सहजता देने में योग का जो क्लींजिंग पार्ट है, आसन है, प्राणायाम है, और जो नेति, धोती, नौली, त्राटक आदि जो कर्म है, उनसे उन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, अपने को क्लींजिंग कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्म आयुर्वेद का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से योग में भी क्यूरेटिव पावर बहुत ज्यादा है, और उसका जो क्लींजिंग वाला पार्ट है उससे हम अधिकतर वंचित है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब बात आती है, अब इसके बाद चित्त की वृत्ति को निरोध कर सकते हैं। जब शरीर हमारा साथ देगा तभी तो हम चित्त के ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है। मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हमें ध्यान में जाना पड़ेगा। मेंटली हम क्यों स्ट्रांग होना चाहते हैं, मेंटली हम क्यों चाहते हैं अपने आप को स्ट्रांग, मेंटली हम इसलिए स्ट्रांग होना चाहते हैं कि हमारा भावनात्मक स्तर अच्छा हो, हम आध्यात्मिक हो, हम स्वयं के बारे में ना अध्यात्म का मतलब है स्वयं के बारे में ना सोचना, पूरी सृष्टि के बारे में सोचना है। मैं एक पिंड हूँ, ब्रह्मांड का एक अंश हूँ, मैं एक पार्टिकल हूँ, वाइब्रेटिंग एनर्जी पार्टिकल भी तो हूँ मैं। लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान के जो 4 स्टेप हैं, वो ध्यान उससे मिलकर के ध्यान होता है, ना कि ध्यान इसका 7वां स्टेप है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में हमने कहा कि वो तदा दृष्ट स्वरूप, हमें उस स्वरूप में प्राप्ति करना है जिसमें कि
हमारा इष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है वो हम बन जाएं, उस लक्ष्य को हम पालें। तो बेसिकली योग के कॉन्सेप्ट में जो हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि हमारी 5 तरह की शीट होती हैं। कोर तो हमारा जो है, जो हमारा जो अन्नमय कोश है, वो हमारा शरीर है, जो ढांचा हमें दिखता है। और उसके बाद हमारा अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश यानी वायु तत्व से संबंधित, जिसमें एनर्जी चलती है, हमारी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। मनोमय कोश में हमारा माइंड, हमारा विजडम ये काम करता है। विज्ञान में हमारे को तार्किक बुद्धि आती है, सूझबूझ आती है और हमारे अंदर प्रज्ञा ज्ञान हो जाता है। और आनंदमय कोश में हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं, हम कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में चले जाते हैं, हम एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंशन इज अ लाइफ, एक्सपेंशन इज अ योगा। मतलब जीवन का जो विस्तार है, अपने आप को शरीर तक सीमित ना रखते हुए पूरे समाज, राष्ट्र, विश्व बंधुत्व को प्राप्त करना, पूरे अंतरिक्ष को भी जोड़ना, अपने देव शक्तियों के उपासना के माध्यम से हम जुड़ते हैं, तो पूरे यूनिवर्स से जोड़ना योग है बेसिकली। तो ये एक छोटा सा योग का परिचय हुआ। अब हम बात करते हैं ये पंचकोश क्या है। पंचकोश में फिजिकल से सटल लेवल तक हम चलते हैं, तो स्टेबिलिटी, वाइटलिटी, क्लैरिटी, विजडम और ब्लिस को हम प्राप्त करते हैं। ब्लिस यानी ऐसा आनंद जिसकी अनुभूति, जिससे हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं। हमारा बच्चा यदि सपोज बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, उसका एडमिशन नहीं हुआ और उसका यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, तो कितना आनंद होता है। तो ये छोटे छोटे आनंद है, लेकिन योग के जो अनुष्ठान है जीवन में हमेशा ही चलते रहते हैं। योग में हम सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम करते नहीं है तो उसका हमें अनुभव भी नहीं है। योग से हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो क्रियाशीलता है वो हमें योग के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। योग के 4 स्टेप मुख्यतः प्रचलित हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। रास्ता कोई भी हो, लेकिन मंजिल तो हमें लक्ष्य को पाना ही है। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग की जो पोस्चर्स की बात है, जैसे स्थिर सुखमय वासना। पहले तो अपने आप को बैठेंगे तभी तो कुछ आएगा। अगर हम बैठेंगे नहीं, हम स्थिर ही नहीं है, हमारे पोस्चर ही ठीक नहीं है, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, तो विचार कहाँ से प्रविष्ट करेंगे? अच्छे विचार नहीं तो डालने हमने समाज के व्यक्तियों में, अपने बच्चों में, अपनी संस्कृति में। तो उसके लिए हमें स्थिर सुखमय वासना, हमारा बैठने का पोस्चर हम सिखाते हैं योग के द्वारा। हम अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक जो उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि गेम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उनमें तो हम ये देखते हैं कि उसके द्वारा हमारा जो है मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ जाता है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता। योगा अभ्यास करने से हमारा वाइटलिटी के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी ज्यादा बनी रहती है और शरीर का क्षय कम होता है, शरीर का नुकसान कम होता है। तो हमारा बॉडी को किस तरह से हम बॉडी पार्ट को कंट्रोल करें, डिसिप्लिन में लाएं, किस तरह से हमें रेस्पिरेशन, किस तरह से हमारे एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। और ये जो कारण है कि इस तरह की जो आनंद की जो स्थिति बताई डॉक्टर साहब ने, कि जो ऐसे योगी हुए हैं, तो उन्होंने सबकॉन्शियस से लेवल को अपना एक्टिवेट करा इस योग के, अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा। तो हम इसके द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, अपने अलर्टनेस ला सकते हैं। और इसमें जो आसन हैं वो भी योग ही है। हम हर एक अष्टांग योग के हर एक स्टेप अपने आप में पूर्ण योग है बेसिकली। हम आसन के द्वारा भी योग का अभ्यास कर सकते हैं, हम प्राणायाम के द्वारा भी योग का अभ्यास कर सकते हैं, हम प्रत्याहार के द्वारा भी योग का अभ्यास करते हैं। ये 8 स्टेप ही अपने आप में पूर्ण योग हैं। कल्चरल, अब हम इसमें अब आसनों की बात करते हैं तो उसमें बताया कि जितने भी जीव जंतु उनके हिसाब के आसन से, जो जीव जैसे बैठता है वो आसन हो गया उसका। इसी प्रकार से कुछ मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं, कुछ कल्चरल पोस्चर्स होते हैं, जिनमें सुपाइन, प्रोन, स्टैंडिंग, लाइंग, ये सब पोस्चर्स होते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ये सब जानते हैं इसको आप सब लोग। तो इस पे हम बात कर ही रहे हैं, रोज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं योग दिवस पर। लेकिन ये योग दिवस ही ना रह जाए, ये हमारे जीवन से जुड़ना चाहिए। प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्राणायाम योगिक प्रैक्टिस है। प्राणा को आयामित करना, अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ना। और उसमें क्या है, हमारा जो हम एक प्राण है, हमारे अंदर जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, उन एनर्जीज, उन वायु के जो प्राणों के द्वारा हम किस प्रकार से नाड़ी, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, हमारी ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है उसका लेवल कम कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट हो सकता है। ऑटोनॉमिक बैलेंस होने की वजह से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की संतुलन की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रित हो जाता है, हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली
सेल्फ हीलिंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तो इससे हीलिंग टेंडेंसी इंप्रूव होती है, इंजरीज जल्दी ठीक होती हैं, फिजिकल इमोशंस जो है हमारे और फिजिकल इमोशंस पर हमारा कंट्रोल बनता है और हमारी जो टॉक्सिन्स है शरीर के अंदर वो बाहर निकलते हैं। इसलिए प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्रत्याहार क्या? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए। प्रत्याहार शब्द बना प्रति और आहार से। प्रति मीन्स हम जो रिवर्स यानी जो हम करते हैं उसको उल्टा, प्रति अगेंस्ट। आहार यानी खाना, जो खाना हमने खाया है उसको निकालना एक तरह से, मीन्स रिवर्स द फूड यानी वॉमिट आउट। तो इसमें खाने की बात नहीं है, इसमें वो विचारों की बात है जो विचार हमारे को दूषित करते हैं, हमारे अंदर अहंकार पैदा करते हैं, क्रोध पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, हमारे अंदर ग्रीड पैदा करते हैं, हमारे अंदर वासनाएं पैदा करते हैं। हमें उन भावों से बचना है प्रत्याहार के द्वारा। तो और ये कब होगा? जब आपको कोई बताएगा आपकी कमियां, तभी तो आप अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ये नहीं कि कोई ऐसा चौके वाला ऐसा गुरु ही होता है। गुरु कोई भी आपको आपकी कमी जो बताए, आपको जो क्रिटिसाइज करता है, वो सबसे बड़ा गुरु है। तो आपको अपने क्रिटिसाइज जो करने वाले हैं उनको फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा अप्रत्याहार के स्टेप पर आगे चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात प्रत्याहार क्या है? जब दिवाली आती है हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। लक्ष्मी का आह्वान क्यों करते हैं? और उससे पहले हम क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं। सफाई जब होगी तभी स्वागत होगा। कोई वीआईपी आता है, पहले हम सफाई करते हैं। तो हमें जब किसी चीज का आह्वान कर रहे हैं, किसी अच्छाइयों को अपने अंदर ला रहे हैं, तो बुराइयों को तो उलटना पड़ेगा ना, उल्टी करनी पड़ेगी उनको भाई। तो हमें क्या है, मनुष्यता किस चीज से? मनुष्यता मन से है, हमारा जो अस्तित्व से मन से है। मन ही चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है और मन जो है सारे शरीर को भी चलाता है, मन सारे इंद्रियों को भी चलाता है, हर चीज को चलाता है। तो प्रत्याहार में हमें मन को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो घृणा और द्वेष का हम दोस्ती करते हैं। इसमें घृणा और द्वेष हमारे साथी कैसे हो जाएंगे? उस उपाय में घृणा से हम क्या करेंगे? हम उन चीजों से घृणा करेंगे और प्रबल घृणा करेंगे जिससे कि हमारे अंदर दोष पैदा होते हैं। जो हमारी कमियां हैं उनसे हमें घृणा करनी है ताकि वो हमारे अंदर ना प्रविष्ट करें, और परिप्रविष्ट हो गए तो उन्हें त्याग दें। जो हमें शुरू से हम गलत काम कुछ करते आ रहे हैं उसको त्यागें, उसका अभ्यास करें त्यागने का। रोज अभ्यास करना पड़ता है प्रत्याहार का, और ये रोज का अभ्यास है ध्यान की, क्योंकि पहली सीढ़ी है ध्यान करने के लिए। पहले ये सबसे पहले प्रत्याहार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा, आपको दीवार में बंद करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि कोई बुराइयां आपके अंदर ना प्रविष्ट कर सके, आपके मन को दूषित ना कर सके। धारणा क्या है? धारणा है देशबंध चित्त से धारणा क्या है? फोकसिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। धारणा इज ए कॉन्सेंट्रेशन। हियर वी कल्चर और थॉट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। गीता में कहा चच्छत सा एव सा, अर्थात जो जैसी श्रद्धा है वैसी उसको प्राप्ति होगी, वैसे हो जाएगा। मैं शिव हूं तो मानता है, तू शिव है तो तू शिव हो जाएगा। तू दीन दुखी दरिद्र अयोग्य अपने आप को असमर्थ अभागा मानता है तो तू वैसा ही हो जाएगा। जैसा फूल है वैसे ही गंध होगी उसके अंदर। तो जिस प्रकार की हमारे अंदर मन के अंदर निर्मलता रहेगी, स्वच्छता रहेगी, सुसंस्कृतता रहेगी, हम उत्तरोत्तर धारणा के स्टेप पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस धारणा का अभ्यास हम उस तरह करते हैं कि वो चीजें के बारे में लगातार चिंतन करते हैं, उन बातों का चिंतन करते हैं जिस चीज को हम अचीव करना। सपोज हम कोई एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, हम एक लेख लिखना चाह रहे हैं, और लेख लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें अपना जो है प्रत्याहार करना पड़ेगा। पहले तो उन विचारों को हटाना पड़ेगा जिसमें कि हमारा मनोबल गिर रहा है, लिखने का हमारे उत्साह नहीं बन पा रहा, हम सोच ही नहीं पा रहे। उन चीजों को अपने आप से रोकना होगा, उन विचारों को अपने अंदर आने नहीं देना। प्रत्याहार में, धारणा में हमें उन विचारों को धारणा करनी होगी जिन विचारों से हमारा रेफरेंसेस हैं, जो यादें हैं, हमारे को थॉट से कंसंट्रेशन बढ़ने थी। क्योंकि धारणा में हम देखते हैं, फोकसिंग करते हैं, तो हमें यादें आने लग जाएंगी, रेफरेंसेस याद आने लग जाएंगे। तो धारणा के द्वारा क्या हुआ कि वो हमारी धारणा शक्ति बनी, हमने उस चीज को धरा अपने अंदर रखने के लिए, संभालने के लिए बर्तन बना लिया अपने अंदर, अपने आप को एक पात्र बना लिया, अपने अंदर पात्रता लिया है। वो पात्रता, जो योग्यता हमारे अंदर बढ़ गई। तो अब जो विचारों का जो हम लेखन शुरू करेंगे उसमें तन्मयता, जब रेगुलरिटी आएगी तो वो ध्यान हो जाएगा। तो उसमें अभ्यास का संकल्प जो हम करते हैं वो ये संकल्प करते हैं कि मैं स्वस्थता सबलता का केंद्र हूँ, मैं शक्ति और तेज पुंज हूँ,
मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं पवित्रता और श्रेष्ठता से परिपूर्ण हूँ, मैं सुसंपन्न शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण धारण किया हूँ। तो इस तरह से धारणा प्रबल करनी है अपनी। धारणा प्रबल होने के बाद अब ध्यान की अवस्था में चलेंगे। ध्यान का क्या है, अब हम प्रैक्टिकल चीज पे आने वाले हैं। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृह्यता आत्म संस्थानम मनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। प्रत्याहार धारणा प्रकरण में हमने कविचार, कुसंस्कार को छोड़ने तथा अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार करने, सद्भाव को धारण करने, सात्विक गुणों का विकास करना है। मनोनिग्रह विषय भी ऐसे। प्रत्याहार धारणा से मन में जब लचीलापन आ जाता है, जब मन में हमारे सॉफ्टनेस आ जाती है, हम एक्सेप्टेंस बढ़ती है, हर चीज को स्वीकारने लगते हैं जब हम, तो हम ध्यान और समाधि की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान उदाहरण क्या है? इष्ट लक्ष्य प्राप्ति, यानी जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा इष्ट है, उसकी प्राप्ति ही ध्यान है। ध्यान में उसके उस काम को करने के लिए लालायित हो जाएं, पूर्ण योग से लग जाएं। जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो वास्तव में योगी हैं। उन्होंने योग का वास्तव में अपने जीवन में चरितार्थ किया है। उन्होंने उस लक्ष्य के पीछे लग करके उस काम को पूरे मनोयोग से किया है, ताकि वो ध्यान है, उनका प्रबल ध्यान है, जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज को अचीव किया है। तो अब बात हम करते हैं जो हम इस ध्यान को कैसे प्राप्त करें, और उसके बाद समाधि क्या, समाधि पहले बता देते हैं, फिर प्रैक्टिकल बात करते हैं। समाधि वास्तव में वह स्थिति है जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिस अवस्था के लिए हम चाह रहे थे कि हम जो है अब हम ये करें कि उस लक्ष्य को पालें। तो समाधि ऐसी अवस्था है, आनंद की अवस्था, खुशी की अवस्था है। तो इसके लिए अब हम चाहते हैं थोड़ा सा हम अभ्यास करें ध्यान का। उसमें हम इंस्टेंट जो टेक्निक है, हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक है और क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक है, IRT, QRT और ओम मेडिटेशन के अभ्यास की बात करते हैं। तो इसके लिए हम जो है सब थोड़ा एक पोस्चर बना लेंगे, सब अपने आसन पे बैठे और जिस भी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उसमें बैठिए। हम पहले IRT की बात करते हैं, आप थोड़ा सुनिए थोड़ा सा। IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करने से पहले आप शवासन लेट जाएं। ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, जॉइन द हील्स एंड टोज टुगेदर and place the palm by the side of the thigh. Keep the face relaxed with a smile all through the start from the toes. अपने शरीर को टाइट कीजिए, पैरों के अंगूठों को टाइट कीजिए। टाइटन द एंकल जॉइंट और काफ मसल्स, टखनों को टाइट कीजिए, काफ मसल पिंडों को टाइट कीजिए। अपने नी कैप को, पटेला को टाइट कीजिए अपनी थाई को, और अपने बटक को स्क्वीज कीजिए, दबाइए, उसको बहुत जोर से दबाइए, जैसे कि प्रेस करते हैं अपनी एनर्जी को साथ। सारे श्वास को बाहर की तरफ निकाल दीजिए, तो मन को बिल्कुल खाली कर दीजिए और अपने हाथ के अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी को बनाइए और जंघा के साथ लगाते हुए टाइट कीजिए। इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, छाती को फुलाइए, अपने शोल्डर को टाइट कीजिए, नेक मसल्स को टाइट कीजिए, अपने फेस को भी दबाइए, थोड़ा सा दांतों को खींचिए, पूरी बॉडी को पैरों से लेकर के सर तक टाइट कीजिए। टाइटन टाइटन टाइटन, रिलीज एंड लेट गो द होल बॉडी इंस्टेंटेनियसली। बिल्कुल एकदम से शरीर को छोड़ दीजिए। पैरों को, हाथों को जांघों से थोड़ा दूर कर लीजिए, मुट्ठी को खोल दीजिए, हथेली का रुख आसमान की तरफ, पूरी बॉडी को कोलैप्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए और अनुभव कीजिए शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया का। इस अभ्यास के बाद ओम ध्यान की एक बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी क्रिया। इसका अभ्यास किसी भी ध्यान की पोस्चर में आप बैठ जाइए। आप अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जैसे जैसे आपको बोला जाए वैसे वैसे आप उसको फॉलो कीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, आंखों को बंद कीजिए। पहले 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम ओम ओम। मेरे साथ साथ मनी मन ओम शब्द का ध्यान करते हुए, ओम की आकृति को ध्यान करते हुए, ओम मंत्र का ध्यान करते हुए मन में ही उसको अपने दोहराते रहें। उसकी आकृति का ध्यान करते हुए बिना रोके लगातार ऐसे मन में
ओम 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 ओम। जितना जल्दी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा करें बिना डिस्ट्रक्शन के। ओम 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 ओम। मन में करना, धीरे धीरे जाप करिए। स्लो डाउन ओम का जाप। हर एक ओम के उच्चारण के बीच में गैप आएगा, उसको देखिए। ओम, फिर देखिए गैप। ओम ओम। हर एक ओम के उच्चारण के बाद गैप आ रहा है, उसको देखिए, उसमें साक्षी भाव से देखिए। उस गैप के भीतर गहरा शांति का अनुभूति कीजिए, गहरी शांति की अनुभूति कीजिए। ओम का जाप चलता रहेगा। इनर साइलेंस को महसूस कीजिए। तीनों डायमेंशंस को अनुभव कीजिए। 3 डायमेंशनल ओम की आकृति को, उसके बीच के गैप को। शरीर के लिमिट से बाहर चले गए, शरीर से बाहर आप चले गए। शांति की अनुभूति, डीपर डीपर। नो साउंड महसूस कीजिए। साइलेंस को महसूस कीजिए। साइलेंस मोर एक्सपेंसिव, बड़ा हुआ साइलेंस, गहरा साइलेंस। अब महसूस कीजिए समुद्र को, महसूस कीजिए पूरा ओशियन को, महसूस कीजिए समुद्र की गहराई में शांति को अनुभव कीजिए। समुद्र की गहराई में शांति को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ओम बहता हुआ चलते आ रहा, ओम की आकृति 3 डायमेंशनल ओम। ओम बिना बोले बिना सोचे ही अजब अजब चल रहा है। साइलेंस को देखिए। शांति ही आनंद की स्वरूप है। शांति ही क्रिएटिविटी है। शांति से ही शक्ति है। शांति से ही ज्ञान है। शांति से ही आनंद है। इसी अवस्था में अपने आप को अनुभव करें। समुद्र की गहराई से इस शांति को हृदय में अनुभव करें। अपने हृदय स्थान पर अनुभव करें। ओम को अनुभव करें। ओम इमर्ज हो रहा है आपके हृदय पटल की आवाज को सुनिए, महसूस कीजिए। शरीर में से निकल रहा है ओम, सारी बॉडी में ओम ओम फैल रहा है चारों तरफ। ओम फैल रहा है। इसके वाइब्रेशंस को अनुभव करें। अनुभव करें ओम की ध्वनि की प्रतिध्वनि को अनुभव करें। ओम ओम चारों तरफ आपका ऑरा शुद्ध हो गया। इसी प्रकार के आपके विचार, दूषित विचारना, हीन भावना, क्रोध, आवेग, क्लेश, द्वेष सब चला गया है ओम की प्रतिध्वनि से, ओम के गुंजन से, ओम की शुद्ध गुंजायमान से। धीरे धीरे पलकों को झपकाइए, नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिना पलके खोले गर्दन को सामने, हाथों को रगड़िए। धीरे से अपनी आंखों को हाथों से ढकिए, दोनों हाथों से। उंगलियों के बीच में गैप को खिड़की की तरह से बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखिए, आंखों को कवर करते हुए हल्का सा मसाज कीजिए चेहरे पर, हल्की सी मुस्कान और वापस। ये था ओम मेडिटेशन। ये आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्वतः ही कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान, धारणा और समाधि की ये शुरुआत है। नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर अनूप, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए निदेशालय आपका बहुत धन्यवाद करता है। आपने सरल शब्दों में योग के विभिन्न आयाम और उसके विभिन्न अंगों को हम सबके समक्ष रखा और हमें उसके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस भी कराई, और इस सभी के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे और हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजकुमार मनचंदा जी को मैं अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए। आपके निर्देशन में आयुष निदेशालय बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपके मार्गदर्शन में आयुष की सभी विधाएं योजनाबद्ध रूप से शोध कार्यों द्वारा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर नित्य नए आयामों को प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रही हैं। आयुष के सभी कर्मी
नया ऊर्जा का संचरण अपने अंदर प्रतीत करते हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि अपने अध्यक्षीय संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आज के हमारे मुख्य वक्ता थे राघवेंद्र राव जी, जो डायरेक्टर हैं CCRYM के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक साइंटिफिक, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव योग का हम लोगों के समक्ष रखा। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अनूपनाथ जी का, जिन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है। कोई भी कार्यक्रम या उत्सव तब तक सार्थक नहीं माना जाता जब तक वहां प्राणी मात्र के कल्याण की कामना न की जाए। तो अब हम मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। May all be happy, may all be free from infirmities, may all see good, may none parted sufferings। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने डायरेक्टर सर से कार्यक्रम को पूर्ण करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।